जो खारिज हो जाती खारिज है तो होगी, क्या पता। वो तो हम करेंगे ना लॉर्डशिप। आप करोगे खारिज, लेकिन कोर्ट हो सकता है ना करे। नहीं नहीं, हम तो कन्विंस, खारिज अपने घर में कर दो। नहीं नहीं सर, कोर्ट को कन्विंस करेंगे। तो इसको ये धारा 5 का ग्राउंड नहीं है, आप उसमें यदि उनकी अपील एडमिट हो तो उसी में आप लगा देना क्रॉस ऑब्जेक्शन। ये धारा 5 में ये ग्राउंड थोड़ी चलेगा। Lordship, the second appeal we have moved, I've moved an application under section 5 also. The respondents plaintiff had filed a suit, Lordship. The suit was dismissed for declaration and permanent injunction. Appellate court has dismissed it that you are not owner of the property, but permanent injunction is granted, and it is written that you will be granted, not you will be removed as per process of the law only. And against that, Lordship, I moved an application under MP Land Revenue Court कि आप इनको हटाइए, encroaches हैं ये. So they have dismissed my suit that no, since the second appeal is pending, we will not permit this, and permanent injunction has been allowed. So I've moved the application under section 5. अभी समझ नहीं पाया मैं। तो मैंने section 5 limitation act क्या लगाया है? नहीं नहीं, here section this is the appeal, this appeal is barred by limitation and you have filed section 5 Yes, ना। yes. तो notice will go। Yes, Lordship. हाँ, तो अभी मेरिट क्या बताई थी आपने, वो मैं नहीं समझ पाया। अच्छा, वो मैंने ऐसा मैं क्या बोला था वो नहीं। मैंने ये बताया लॉर्डशिप that respondent plaintiff ने फाइल किया suit for declaration and permanent injunction. ठीक है। वो डिसमिस हो गई। That you are absolutely permissive possession में थे, सिकनी में आप लोग ओनर नहीं है। they filed this suit on what basis? कि हम सिकनी में कंटिन्यूसली बहुत सालों से है। अच्छा, सिकमी was मतलब they were given the land by you. Yes. Yes. तो उन्होंने कहा हम सिकनी में बहुत सालों से हमने that was They discussed. have acquired title on the basis of that Yes. 168, 169. Yes, Lordship. तो ये dismiss हो गया। Was dismissed and the trial court dismissed the suit in its entirety. Entirety. Appellate court has found them to be in possession. हाँ। And has granted Permanent injunction. और कह दिया that you will be removed in accordance with law. हाँ। तो उसमें इसलिए हमने किया नहीं सेकंड अपील के खिलाफ, हमने लगा दिया तहसीलदार क्या that they should be removed, they are encroachers. ऐसे थोड़ी होता है encroachers since when they are in possession. Possession तो लोग Appellate court has found them in possession since when? ये फाइंडिंग नहीं है लॉर्डशिप। अरे दावे से तो माने ही होगा, दावे की डेट से। यस लॉर्डशिप। दावे की डेट है 7/8/15 लॉर्डशिप। and they were found in possession by the appellate court by judgment and decree dated 31/8/18. Yes, lordship. When did you move the application 250? 250 application when was moved by you? Before तहसीलदार। हाँ, when? तहसीलदार को मैंने किया है लॉर्डशिप 2020 में। What is the limitation for filing application under section 250? 250 में नहीं किया लॉर्डशिप। Which application you filed for its disposition? तो एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में क्या धारा नहीं लिखा मैंने। What is the provision for dispossessing the encroacher? If you are filing the application for disposition of the same person, yes, 250 will not lie because 250 can be filed within 2 years. Yes, 2 years. From the date of disposition. Yes, lordship. And he has been found in possession as at least from the date of suit. Yes, lordship. So 2 years were passed on the date of filing the application under section 250. Lordship. ये कौन सा ग्राउंड माना जाएगा आपका धारा 5? इसीलिए जब when this order file the suit, simply it is a suit for possession. 250 में हर व्यक्ति थोड़ी चला जाएगा। नहीं, अब ये तो दोनों अदालत से हार गए, इसलिए हमने सेकंड अपील की, क्योंकि हमने काउंटर भी किया था लॉर्डशिप, इसलिए हमने फिर से सेकंड अपील भी की है। क्लेम क्या था आप? किया था, क्या था? हमने कहा था कि ये परमानेंट इंजंक्शन इनको नहीं मिलना चाहिए। ये कोई बात थोड़ी, आपने क्या मांगा था काउंटर क्लेम में? आपने क्या मांगा था? वो हमने जब इन्हें परमानेंट इंजंक्शन मिल गई उसी के खिलाफ हम इसमें सेकंड अपील में आए हैं। वो तो अब आए हैं आप ना, आप लेट है ना। हाँ, उसीलिए हमने धारा 5 की लगाई है। धारा 5 तो लगाई है, लेकिन यू हैव फाइल्ड दिस एप्लीकेशन रिलेटेडली। यस, दैट इज व्हाई दावा वगैरह क्यों नहीं लगाते उनके खिलाफ? बिकॉज यू हैव बीन फाउंड टू बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। यस, वेदर 250 इज द रेमेडी? वो तो नहीं है लॉर्डशिप। 250 रेमेडी नहीं है तो दावा लगाओ काहे के लिए इसमें उलझ रहा हूं? मैं अभी पेंडिंग भी रख दूंगा, 10-20 साल चलेगी, फिर खारिज होनी है। नहीं, इसकी तो हम फर्स्ट उसमें ही खारिज करवाएंगे ना लॉर्डशिप। इनकी जो सेकंड अपील है, इन्होंने भी की है कि हम सेकंड अपील पेश, इन्होंने भी सेकंड अपील की है। वो कहाँ है?
वो लॉर्डशिप 19 को लगी है। तो उसमें क्रॉस ऑब्जेक्शन लगा दो। उसको काहे के लिए अपना राइट खत्म कर रहे हो? मान लो दिस सेक्शन 5 इज डिसमिस, तो उसी में आप सब कुछ कर लीजिए। अभी एडमिट नहीं हुई ना वो। नहीं, यदि वो एडमिट, यदि वो खारिज हो चली जाएगी, जाती देन इट गोज, जो खारिज हो जाती खारिज है तो होगी, क्या पता। वो तो हम करेंगे ना लॉर्डशिप। आप करोगे खारिज, लेकिन कोर्ट हो सकता है ना करे। नहीं नहीं, हम कन्विंस, खारिज अपने घर में कर दो। नहीं नहीं सर, कोर्ट को कन्विंस करेंगे। तो इसको, ये धारा 5 का ग्राउंड नहीं है। आप उसमें यदि उनकी अपील एडमिट हो तो उसी में आप लगा देना क्रॉस ऑब्जेक्शन। ये धारा 5 में ये ग्राउंड थोड़ी चलेगा। सर इसमें लिंक कर दीजिए, दोनों हमारी भी वो रह जाएगी। नहीं मैडम, ये तो इसमें लिंक करने जैसा कुछ है नहीं ना। यदि वो अपील एडमिट हो, आप तो उस अपील को यदि आपको देखो ये मुकदमा चलाना है, लॉर्डशिप ये चलाना ही है, अदरवाइज उनकी अपील खारिज करा के आप जो अपना दावा लगाओ, या चलाना ही है तो अपना उसको एडमिट करा के क्रॉस ऑब्जेक्शन लगाओ। नहीं, उसको एडमिट नहीं, आपका काउंटर क्लेम था क्या? नहीं हमारा काउंटर क्लेम क्यों रहेगा? क्लेम नहीं था फिर क्या मिलेगा? हमारा काउंटर क्लेम नहीं था। इनको जो अपीलेट कोर्ट ने परमानेंट इंजंक्शन का दिया है, तो आप हमारे में सिकमी में थे, बस परमिसिव पोजेशन में थे। आपकी ज्यादा लेट है मैडम, ज्यादा समय हो गया। और आपने जो ग्राउंड लिया है वो उससे थोड़ी है कि साहब हमने इसलिए नहीं, हमने इसलिए कहा, हमने इसलिए जो है अपील नहीं की क्योंकि 250 में चले गए थे। पढ़िए क्या लिखा है आपने आवेदन में। हाँ यही लिखा है। ग्राउंड पढ़िए, तो- कौन सा पहला पढ़े? मैं पैरा 3 पढ़ेंगे लॉर्डशिप। हाँ, That the said delay has been occasioned because the appellate court has given the decree that as per process the possession can be taken. तो प्रोसेस तो बताई नहीं थी उन्होंने। प्रोसेस बताई नहीं। तो अब आपने, आपको जो प्रोसेस उचित लगी आप वहां चले गए। हाँ। दैट कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू कंडोन द डिले। नहीं, Therefore, as per As the per law, law- they moved application which dismiss on the ground count of pending second appeal हाँ, before this तो honorable court. सेकंड अपील जो उन्होंने पेश किया ऑन दैट ग्राउंड की ना। हाँ, उसमें तो सेकंड अपील खारिज करा लेना, फिर 250 चला लेना, क्योंकि आपके हिसाब से तो रेमेडी 250 है। नहीं तो इसके आधार पर सेकंड अपील कैसे चलेगी? अब हमको परमानेंट इंजंक्शन का भी हमको चैलेंज करना है, तो करो जो करना है जो आपको। तो उसी के लिए तो सेकंड अपील की है तो मैंने। आपको अरे ऐसे ऐसे थोड़ी होगा कि आप चाहे जब चैलेंज करोगे। नहीं लॉर्डशिप, ये जो है मैंने बहुत डिले में नहीं किए। जैसे ये ऑर्डर हुआ रेवेन्यू अथॉरिटीज का, The filing of 250 application cannot stop the running of limitation. yes, but at the same time the applicant should also be in an occasion to understand that this was the रेमेडी है आपके पास, रेमेडी ये गलत है, इसमें थोड़ी ये गलत कैसे लॉर्डशिप? गलत है ना। धारा 5 में ये ग्राउंड नहीं बनता। आपको जजमेंट पता है, आपको लगा कि यहाँ नहीं जाना वहां जाना है, तो पहले सब वहां होने के बाद अपील थोड़ी है, आप यहाँ भी चले जाते वहां भी जाते। सर ऐसा ऐसा उसमें था नहीं। जब इनका ऑर्डर आया, ऐसा अपीलेट कोर्ट ने ये तो नहीं लिखा था कि आप 250 लगाओ। अपीलेट कोर्ट ने यदि गलत फाइंडिंग दी थी तो आपको हाई कोर्ट में आना चाहिए था। अब उसमें ये लिखा था कि भाई आपने पोजेशन आप ले सकते हैं। आपने 250 लगा दी, इट मींस वो फाइंडिंग तो कंफर्म ही हो गई कि उसका कब्जा है। मुझे बताइए, आप आपने 250 लगा दी, इट मींस यू आर ट्राइंग उनको दिया था ना सिकमी ने लॉर्डशिप। यस, इट मींस कि आप कब्जा मांग रहे हो। हाँ यस लॉर्ड। अब आप इस अपील को करके भी मिलेगा क्या आपको? आपके 250 लगाने से वो फाइंडिंग तो कंफर्म हो गई अपीलेट कोर्ट की। आप मेरी बात शायद यस, समझ नहीं पा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दिस। even after condonation of delay, this appeal has to be dismissed because you are accepting that he is in possession. Yes. So until unless you file the suit or your application is decided in your favor 250, how will you get the possession? Absolutely. Now, the legal question that is arisen, Lordship, that once both the courts below has held that you are not the title holder of the property, and you were only as in a permissive possession was given to you. Permissive possession में है ना? तो permissive possession जो आपको दिया गया था, whether permanent injunction decree. रिलीफ थोड़ी मिलेगी अपील में। The question is whether permanent injunction decree can be given by the trial appellate. मिल सकती है। Like कैसे मिलेगी Lordship? चलो बहस करिए आप। इसमें मैं कर देती हूँ Lordship। करिए। नहीं, रूलिंग इसमें साइटेशंस के साथ करें। कल लगा दो। मंडे Lordship। मंडे लिस्ट ऑन मंडे। मंडे नहीं Lordship, मंडे छुट्टी। छुट्टी कहाँ है मंडे की मैडम? Lordship या तो मंडे आएंगी 16 ठीक है मंडे। लिस्ट ऑन 16। नहीं तो आई विल बी रेमेडीलेस Lordship। The revenue authorities are saying कि आपका 250 टाइम बार हो गया है,
The appellate court is saying कि permanent injunction में आपका you can go as per process of law. Process of law is not defined, lordship. Again civil suit. प्रोसेस ऑफ लॉ इज ऑलरेडी डिफाइंड, लेकिन आप क्या सही जो है जो प्रोसेस है उस पर नहीं जाते, आपको लगता है जल्दी से कब्जा मिल जाए, सर फिर उसके बाद 250 में तहसीलदार के यहाँ से मिल जाए। आपकी प्रॉब्लम ये है, कब्जे की सूट बना हुआ सिविल सूट की रेमेडी, आप वहाँ जाइए। सिविल सूट का फिर से कब्जे का अपन एप्लीकेशन लगाएंगे। There is a suit for possession once there is already findings and adjudication by the competent court. दावा होता ही इसलिए है कि आप सत्य रूप से काउंटर क्लेम लगा दो, रिलीफ मांग लो। जिस दिन जो दावा डिसाइड हुआ होता है उसी दिन कब्जा मिल जाता है, लेकिन आपको तो कब्जा मांगना ही नहीं है। पहले आप कह रहे हो कि हम कब्जे में, हम कब्जे में। हमने कहा कब्जे में नहीं, हमने कहा कि आपको परमिशन से क्यों नहीं मांगा? काउंटर क्लेम में कब्जा मांगा जाता है ना, मांगना चाहिए। अभी भी मांग सकते हो, अभी भी आप वही उलझे हुए तहसीलदार के यहाँ 2018 से उलझे ही हुए ना। Sir, I will just verify whether I can file a counter claim in this second appeal pending which is coming on 19th. काउंटर क्लेम नहीं होता, दावे में होता है। आपने कहा ना क्रॉस केस कर देना उसमें आप क्रॉस ऑब्जेक्शन कर सकते। क्रॉस ऑब्जेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम काउंटर क्लेम। Yes. क्रॉस ऑब्जेक्शन कम्स अंडर 4122 एंड काउंटर क्लेम कम्स अंडर ऑर्डर 826। थोड़ा अंतर है दोनों। Lordship. तो इस चीज को मैं वेरीफाई करके आप जो कर सकते हो उसमें कर लो, इस अपील में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो कंफर्म कर लिया कि उसका कब्जा है। उस फाइंडिंग को आप सेटिस्फाइड आप यहाँ कराने आए हो, वहां करा लेना। चलो आप पहले उसमें बहस करो धारा 5 पे। Yes. वेदर ऑन दिस ग्राउंड यू कैन बी, योर डिले कैन बी कंट्रोल्ड और नॉट, ये बताइएगा। Yes, Lordship. धारा 5 पे The number 81